और परहेजगारी और खुदा इसी तरह सब्र और दीनदारी और उल्फत का रदा लगाकर खुदा वो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जो खुदा तू हमसे चाहता है। जैसे तेरा रसूल कहता है कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा हम तेरा मकदिस बन जाए। खुदा आज के कलाम के वसीला से तुम्हें बड़ी बरकत देना खुदा, अपने को काबो जैसा जोर देकर इस्तेमाल करना खुदा। तेरे बंदा भाई जिब्रान के लिए जो उस आवाज को जो खुदा बेशक हमारे लिए एक मुख्तलिफ जबान होगी, उसको हमारी जबान में उर्दू में वो हम तक उस कलाम को पहुंचाने वाले हैं। तो उसके लिए तेरे ममसू के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो आपने दोनों ममसूओं को कसरत के साथ इस्तेमाल करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आप अपने माइक प्लीज सब बंद कर दीजिएगा। और हमारे साथ ब्रदर नेस्टर हैं फिलीपीन से, पाकिस्तान में आए हुए हैं, काफ़ी दफ़ा आए हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं तारुफ करवा रहा हूँ कि खुदा ने अपने खादिम को काफ़ी कसरत से काफ़ी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और खुदा ने बड़ी बरकत दी है भाई नेस्टर को। और आज वो हमारे दरमियान इस संडे सर्विस को प्रीच करेंगे, खुदा की खिदमत करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। God bless you, my brother Nestor. Good to see you. God bless you too, brother. Yeah, we have brother different churches here together in Sunday service from Wakand, from Lahore, and some other cities of Pakistan. So they all get together and having a joint Sunday service in this lockdown situation. Praise the Lord. Amen. Yeah. So it is the benefit because of the lockdown, because of the quarantine. So all of us come together online. Yes, amen, amen. So it's really a privilege for us, my brother, that you have some time for the bride in Pakistan, because they already have a great hunger and thirst to get together and listen the word of God. And we have been blessed by your ministry from the last few years. You've been visiting us. That's why we can't leave you. Praise the Lord. I just thank the Lord, give him back the glory for using us as his channel of blessing. Yeah. Amen. Amen. So, brother, I will translate you, and you can carry on with what God placed in your heart. Okay. Yeah, we're going to start now. Yes, brother. Okay. So, Lord bless you, brother and sister. भाई और बहनों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। Yeah. So, though we are not together in our natural body, but we are together in the spirit. बेशक हम जिस्म में तो एक साथ आज नहीं हैं, लेकिन यह है रूह में हम सब यहाँ पर आज इकट्ठे एक ही बैठे हुए हैं। Amen. Yeah, we are now all in the same situation. हम सब जो है एक ही हालत से गुजर रहे हैं। Yeah, and this afternoon, this morning to your place, I just want to be a blessing. और आज मेरे मुल्क में दोपहर है और आपके पास सुबह है, और बस मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए बरकत का बायस बनना चाहूँगा। I know the pastor, the minister, they already encourage your people a lot. और मैं ईमान रखता हूँ कि खादमीन ने अपनी कलीसिया को जो है पहले ही बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई दी होगी। So I'll just want to just add some more. और बस मैं और चंद हौसला अफजाई के लिए आपके साथ बातें करना चाहूँगा जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। Okay, so we're open our Bible in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. आइए मत्ती की इंजील 7 बाब में चलते हैं और उसकी 24 से 27 आयत chapter 7. मत्ती की इंजील verse 24 to 27. मत्ती 7 बाब 24 से 27 आयत। Therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods come, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods come, and the winds blew, and beat upon that house,
and it fell, and great was the fall of it. I'll read it in Urdu, my brother. उस वक्त मैं उनसे साफ कहूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगीं, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदाम के कलाम के पढ़े, उसने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। Amen. Let's bow our head for a prayer. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। Oh Lord God, I pray that you just open the windows of heaven and bless your people, Lord God. खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू अपने आसमान की खिड़कियों को खोल, और खुदा अपने बच्चों को तू इस कलाम से बरकत बख्शना। Because in the times like this, Lord God, you are our strong tower and our refuge. खुदा प्यारे मसीहा, तू ही हमारा मजबूत बुर्ज और किला है, तू ही हमें बचाने वाला है इस मुश्किल घड़ी के अंदर। I pray, Lord, that you just bless your people. खुदा मैं दुआ करता हूँ तो अपने लोगों को बरकत दे। In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen. Praise the Lord. आमीन। खुदा की तारीफ हो। So now the Bible said, God will, those who built his house upon the rock, even the storm come, the wind blew, it will not fall. अब बाइबल बयान करती है कि जो लोग अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, चाहे आंधियां चलें चाहे मींह बरसें, वो घर कभी गिरेगा नहीं। So just make sure that you are built upon the rock. अब हमने इस बात में अपने आप को देखना है कि क्या हमारा घर जो है वो चट्टान के ऊपर है या नहीं। And we knew that the house that God is mentioning is this body, is our body. अब जो खुदा कह रहा है कि अपना घर चट्टान पर बनाना, हमारे बदन की बात हो रही है कि हमारा बदन मजबूती के साथ खड़ा है या नहीं। The Bible said we are the temple of God. बाइबल बयान करती है कि हम खुदा का जिंदा मकदस हैं। So we just need to make sure that we are built upon the rock. और हमने अपने आप को देखना है, अपने आप को साबित शुदा करना है कि क्या हमारा घर चट्टान के ऊपर है। And we know that the rock means revelation. आमीन। और चट्टान क्या है? वो खुदा का मुकाशवा है। So make sure that we are built upon the rock of revelation. तो हमें इस बात की अब समझ होनी चाहिए कि क्या हमारा घर जो वक्त का मुकाशवा है, वक्त का पैगाम है, उसके ऊपर घर खड़ा है या नहीं। See, because some people, they have the information but they don't have that revelation. क्योंकि कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है कलाम की, इस मैसेज की मालूमात बड़ी होगी, लेकिन उसका मुकाशवा नहीं होगा। They can read the message, they can hear the message, but that is only information but no revelation. आमीन। अब लोग किताबें पढ़ लेंगे, मैसेज को बहुत ज्यादा सुन लेंगे, लेकिन होगा क्या? वो सुनने के बाद सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मुकाशफों की बहुतात बहुत ज्यादा, लेकिन उसका असल जो भेद छुपा है, जो मैसेज का असल मतलब है, वो उनके पास नहीं है। See, like I say, this message is a prophetic message. क्योंकि ये पैगाम जो है हमारे पास जो है ये नबूवती पैगाम है। See, so the spirit that must be in us today must be the spirit of prophecy. तो हमारे अंदर जो आज रूह होनी चाहिए, वो भी एक नबी की रूह होनी चाहिए। If the anointing spirit that was in Luther that is with us today, we will preach justification. और अगर हमारे पास लूथर की रूह होगी, तो हम आज भी उसी रास्तबाजी की, उसी तौबा के पैगाम को प्रीच करेंगे जो मार्टिन लूथर कर रहा था। If the spirit of John Wesley is with us today, we will preach sanctification. और अगर जॉन वेस्ली की रूह हमारे अंदर है, तो हम आज भी उसी तकदीस को सिर्फ बयान करें। But if the spirit that is in the prophet is with us today, we will also preach
prophetic message. आमीन। लेकिन आज अगर हमारे पास उस विलियम ब्रैनम की नबी की रूह आई है तो हम भी वही उसी रूह से पैगाम बयान करेंगे। See, the prophet went up to that watchtower and he is our watchman. और नबी जो है वो ऊपर ऊंचे उस टावर के ऊपर बुर्ज के ऊपर चला गया और वो निगहबान के तौर पर उसने हमारे लिए काम किया और आज हमारे पास भी वही जिम्मेदारी है। See, he showed us what had come and what has came and what is coming and what will going to come. और Past, जबकि present and future. आमीन, जब उस खुदा ने उस नबी की ड्यूटी लगाई कि वो ऊपर बुर्ज के ऊपर जाकर देखे कि क्या शहर में होने वाला है, क्या आने वाला है, उस सब चीजों की खबर जो है वो अपने बेटे और बेटियां को दे सके। See, like this thing that's happening today, this pandemic. क्योंकि आप देखें ये मोहलिक वबा जो चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, We are expecting this, right? हाँ, अब हम इस बात का जो है वो तसव्वुर कर रहे थे, हमें तवक्को थी कि ये सब कुछ होगा। Before the prophet said that way back 1950s. क्योंकि 1950 में आज जो कुछ हो रहा है नबी ने पहले ही बात कर दी थी। See, and then the people will going to have their own solution. They will go to the doctor. They will try to use they will go to hospital. Some of them said we will just stay in the house. Some said we will put a mask. Some said we will use disinfectant. Amen. अब 1950 में जो आज ये वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, भाई ब्रैनम ने 1950 में इस बात की पेशन गोई कर दी थी कि लोग कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हम मुंह के ऊपर मास्क पहन लेंगे, हम सैनिटाइजर से हाथ धो लेंगे, अपने आप को बचाने की हम बारहा कोशिश कर लेंगे। I know you know that quotation, right? Yes, मैं जानता हूं आप नबी के इस हवाला से वाकिफ हैं। You have read that quotation already. That's why I did not read it. इसलिए मैं इस भाई ब्रैनम के हवाले को पढ़ नहीं रहा क्योंकि आप सब ने इस हवाले को पढ़ लिया है। See, so now, okay, so everybody is trying to give their solution. अब हर शख्स जो है इस चीज में लगा हुआ है कि किसी तरह से अपने बचाव के लिए वो हल तलाश करे। The science is trying to give us solution. The government also trying to give us solution. साइंस को देखें, गवर्नमेंट को देखें, वो हल तलाश कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं कि किस तरह से इस वायरस से बचें। See, the science said you need to practice social distancing and wash your hand and cover your face. अब साइंस कह रही है कि अपने चेहरे पर मास्क पहने, अपने हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंस रखें कि जब आप बाहर निकलें तो तकरीबन 2 मीटर 6 फीट का फासला जो है दो लोगों के दरमियान होना चाहिए। Then our government said, okay, we will need to lock down, quarantine. और गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है कि अगर इस तरह नहीं लोगों ने गल सुननी तो ऐसी लोगों को घर बंद कर देने हैं। See? So that the virus will not spread. ये वायरस जो है अब आगे फैल ही ना सके। Those were the solution of the government and the science. अब साइंस और गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही हल है एक। See? But we know, okay, it will not give us the perfect solution. लेकिन हम जानते हैं कि ये एक कामिल हल नहीं है। See? Like I've been telling it to my people, जैसे मैं अपनी कलीसिया से बात कर रहा था, don't be afraid, okay? Don't be afraid. कि आपने इस वायरस से डरना नहीं है। Because this problem is not still very mild. क्योंकि अभी ये जो मसला चल रहा है, अभी ये बड़े थोड़ी हद है इसकी, इतना ज्यादा भी नहीं हुआ। See, this virus will not kill you. ये वायरस आपको कत्ल नहीं करेगा। This virus is very contagious but not deadly. ये वायरस ये है तो खतरनाक लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है जितना लोगों ने ले लिया है इसको। See, it is very contagious but not deadly. ये है
खतरनाक, लेकिन ये नहीं है कि ये लोगों को फौरन मार ही दे। So don't worry. इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Okay? You can easily be contaminated, but it is not deadly. कि आप अपनी हिफाजत जो है आसानी से कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं इस वायरस से, लेकिन ये इतना भी मोहलिक नहीं है। Because people thought when I get the virus, I will die. क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे वायरस हो गया तो मैं तो फिर मर जाऊंगा। No. नहीं, आप मरेंगे नहीं। See, this is very dangerous to the old men. ये जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ये खतरनाक है। Like me, very जैसे मैं dangerous to the senior. जैसे मैं बूढ़ा हूं, मेरे लिए ये खतरनाक है। But to the young people, no. लेकिन नौजवानों के लिए ये नहीं है। See, some of our brother and sister, I know they are working at the hospital. Don't worry. और मुझे पता है पाकिस्तान में भी कुछ भाई बहन हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। See, don't worry. आप परेशान ना हो। Okay, that's why some people, they are asymptomatic. They do not show any symptoms. इसलिए कुछ लोग, say again brother, Some people are asymptomatic. They do not show any symptoms, but the Okay. virus is in their body already. ओके। अब कुछ लोगों के अंदर ऑलरेडी ये इस तरह का वायरस है, लेकिन उनके जिस्म से जो है वो नजर नहीं आ रहा, ना असरअंदाज हो पा रहा है कि उनके अंदर वायरस है। See, the science call it asymptomatic. और साइंस इसको Asymptomatic. साइंस ही एक इस तरह का ये एक निजाम कह रही है कि ये वायरस जो है हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत जरूर है। That's why they said some people, they already have the virus and you don't know it. Then you will be contaminated, infected by them. इसलिए कुछ लोगों के अंदर साइंस बताती है वायरस है, तो आप उनसे जो है उस वायरस को ले लेते हैं और वो आपके जिस्म के अंदर भी आ जाता है, लेकिन ये है कि वो आपको मारेगा नहीं। Why they are asymptomatic? Because their immune system is very high. असल में जो हमारा एक इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर है कि जो वो काफी जो खुदा ने इस निजाम को, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाया हुआ है, वो काफी ताकतवर है जो इस वायरस से लड़ सकता है। Once your antibodies is very strong and your immune system is very strong, even there is a virus inside your body, it will not affect you. क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे बदन के अंदर, वो इस कदर ताकतवर है कि अगर इस तरह का कोई वायरस बदन के ऊपर असर भी करे, तो वो उसके मुकाबले के लिए हमारे जिस्म के अंदर ऐसी कुव्वत मौजूद है जो उसके साथ लड़ती है और इस वायरस पर गालिब आ जाती है। Oh, so you young people, don't worry. इसलिए जो नौजवान लोग हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Okay? Amen? आमीन। See? But we need to take care our elderly brothers. लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी हमें जो है वो हिफाजत रखने की, ख्याल करने का जो है हमें जरूरत है उनकी। See? Again, I am not afraid of the virus. इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे वायरस का कोई डर नहीं है। See? I also follow our government lockdown system. और जो गवर्नमेंट ने एक असूल बनाया है उसकी मैं भी पैरवी कर रहा हूं। Because I am a law-abiding Christian. क्योंकि मैं ऐसा मसीही हूं जो कानून के मुताबिक जी रहा हूं, जो खुदा ने सिखाया कि हुकूमतों के ताबे रहें। Okay? We are not afraid of the virus. We are law-abiding Christian. हम खुदा के कलाम को, उसके कानून को मानने वाले हैं, इसलिए हम वायरस से आज नहीं डर रहे, लेकिन जो हुकूमत ने कहा हम उस बात पर अमल कर रहे हैं बस। And so we follow our government. और हम अपनी गवर्नमेंट की को जो है उसकी पैरवी कर रहे हैं। Okay? So don't worry, okay?
इसलिए आप परेशान ना होइएगा। Okay? Because this virus, anything, even if I have thousands of cancers in my body, it cannot kill me. और ये वायरस जो है अगर चढ़ भी आए Even किसी the cancer इंसान पर, तो ये cells. असल में ये उसको मार नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने एक निजाम आपके अंदर इस किस्म का बनाया है। See, that's why we are not afraid. इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। Say, like the prophet said here, and I know my Redeemer liveth. It said, so that the brand can saw it. Okay. Yeah, brother. Let me just clarify to them that they turn off their microphones. Okay. भाई अपने माइक्रोफोन्स प्लीज बंद कर दें। It says here, I've been proven through the ages that persecution strengthened the church, and Daniel, not knowing how God was going to do it, and not knowing whether God was going to do it, but knowing that he was able to do it, and knowing that something down in him told him so. See, God had a purpose. भाई आप अपने माइक प्लीज, भाई आशर आप अपना आपको बंद कर लें। एक मैसेज है भाई ब्रैनम ने पेश किया है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। उसके अंदर कोटेशन है, मैं कोटेशन में बयान करता हूं। भाई भोला, आप 1 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद कीजिएगा, वो ब्रदर की वीडियो सामने नहीं आ रही है। ओके, भाई ब्रैनम कहते हैं अपने पैगाम में कि ये बात साबित शुदा है कि कलीसिया के ऊपर मुसीबतें आनी है, लेकिन वो कलीसिया को मजबूत करने के लिए आती हैं। और दानियल जो है इस बात से वाकिफ नहीं था कि हाउ गॉड वाज गोइंग टू डू इट, कि खुदा जो है किस तरह से इस काम को करेगा। और उससे अगली बात भाई ब्रैनम कहते हैं कि गॉड वाज गोइंग टू डू इट, कि खुदा ने ये करना था, बट नोइंग इट दैट ही वाज, और खुदा अपने लोगों को साबित करने के लिए ये काम करता है। आमीन। Brother Nestor, your microphone is off. Can you turn it on? I can't hear you, Brother Nestor. Your microphone is off. No, it's from your computer. If you go to your computer, there's a button on the screen. Just click on it on the microphone. Nag-mute. Okay. Yeah, I can hear you now. So, what happened? Somebody mute my... Okay? Yes. Oh. So Daniel don't know if God will help him. Daniel don't know if God will save him. But one thing Daniel knew, that God can do it. अब दानियल इस बात से वाकिफ नहीं है कि खुदा उतर कर आएगा उसकी मदद करने के लिए, या खुदा किस तरह से उस काम को, उस मुश्किल से उसको निकालेगा। लेकिन दानियल का ईमान इस बात पर जरूर था कि हाँ, खुदा जरूर करेगा, जरूर। See? And then it says here, and the lion could not eat the prophet because God sent an angel. He had an angel standing present to protect this prophet because God had a purpose. He wanted to show that self-styled king his mighty hand and his purpose. अब भाई ब्रैनम इस पैगाम में मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है 1958 में वो बयान कर रहे हैं कि दानियल इस बात से वाकिफ जरूर था कि खुदा उतर कर आएगा उसकी मदद करने के लिए। जैसे दानियल के ऊपर मुसीबत आई है, वैसे ही भाई ब्रैनम कह रहे हैं कलीसिया के ऊपर आती है, लेकिन वो मजबूती के लिए होती है। तो दानियल को जो है वो शेर कुछ कह ना सके, उसे चाहे उन शेरों की मान में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी वहां खुदा ने अपने फरिश्तों को भेज दिया
ताकि वो नबी की आकर, जो वक्त का नबी है, जिसके पास वक्त का पैगाम है, उस पैगाम को जो है उसकी मुहाफजत कर सकें। तो उसको बचाने के लिए खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा है। Amen. आमीन। See? So in the time of Daniel, they threw him in the lion's den. अब दानियल के जमाना में उन्होंने उसे दानियल को आग में डाल दिया। Daniel don't know if God will save him, but he knew God can save him. अब दानियल इस बात से वाकिफ नहीं कि खुदा उसे बचा सकता है, लेकिन खुदा ने उसे बचाना ही था। Then God sent the angel to protect the prophet. और खुदा ने फरिश्तों को भेज दिया ताकि नबी को बचा सकें। It is not God wants to protect the prophet only, but he wants to show his power. अब सिर्फ नबी को बचाना ही नहीं, बल्कि खुदा अपनी ताकत, अपनी कुव्वत जो है वो वहां पर जाहिर करना चाह रहा है बाकी लोगों के ऊपर भी। So same thing in today, God is trying to show us his power. आज भी खुदा अपनी उस कुव्वत को हम पर जाहिर करना चाहता है। Then in this message, the prophet said, I went to a barber shop. While I was sitting on that barber chair, my heart seems to stop. और भाई ब्रैनम कहते हैं इसी मैसेज में कि वो एक नाई की दुकान पर गए हैं बाल कटवाने के लिए, और बाल कटवाने वाली कुर्सी पर बैठे हैं, तो कहते हैं कि मेरा दिल एक मिनट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। Then he said, I thought I had a heart attack. He thought that he died. और भाई ब्रैनम जो हैं वो सोच में पड़ गए कि मेरा दिल थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। But then he said, there is no power that can take me until God's purpose is fulfilled. There Amen. is nothing that can hurt me, not a thing, until God's purpose is fulfilled. आमीन। अब भाई ब्रैनम कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, मेरा दिल बंद हो गया, लेकिन फिर उनके दिल में आया कि कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं है जो मुझे यहां से ले सके, मुझ पर मौत ला सके बगैर खुदा के मकसद को पूरे किए हुए। जिस मकसद के लिए खुदा ने मुझे जमीन के ऊपर रखा है, उस मकसद को जो है मैं जरूर पूरा करूंगा, और उस मकसद को पूरा करने तक कोई भी छोटी सी चीज भी मुझे हलाक नहीं कर सकती। See, nothing can hurt us until God's purpose in our life is finished. हमारी जिंदगी में जब खुदा ने मकसद रखा है, जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारी जिंदगी को कोई लेने वाला नहीं है। आमीन। See? So don't worry. इसलिए आप परेशान ना होइएगा। Then it says here, in the handwriting of the wall, it says, notice, in there God had a servant down there by the name of Daniel, a young prophet about 40 years old, who was serving the Lord with all of heart, and God had a work for him to do. And in the carrying away of the Babylon, remember, if God has a work for you to do, all the demons out of torment cannot take you. They just can't startle you in any way. God's got a purpose for the Holy Ghost Church, and all the devils of hell will never be able to take it away. God's got a purpose for it, and it will never be destroyed until God lets it fulfill the purpose that He has ordained it to do, and it will. और ये पैगाम है नविश्ता दीवार। भाई ब्रैनम इस पैगाम में बयान करते हैं कि गौर करें कि खुदा का खादिम दानियल जो है नौजवान खादिम था, और वो 40 साल का था, और खुदा की खिदमत अपने पूरे दिलो जान से वो कर रहा था और खुदा के काम में लगा हुआ था। और जब वो बाबल में दाखिल कर दिया गया, बाबल के अंदर आ गया है अब दानियल। रिमेंबर, इफ गॉड हैज अ वर्क। और अब इस बात को याद रखें कि खुदा ने दानियल से एक काम लेना था। अब अगर जो अबलीस की बदरूहें हैं, वो बदरूहें बहुत ज्यादा छोड़ दी भी जाएं, लेकिन फिर भी वो जो वक्त का पैगाम है, जिस शख्स से खुदा ने काम अपना लेना है, उसको ये बदरूहें कुछ भी कह नहीं सकती। They just can't startle you in any way.
वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में है और खुदा का मकसद आप उठाए हुए हैं, उस मकसद को लिए हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, इसलिए आपका कुछ होने वाला नहीं। एंड ऑल द डेविल्स ऑफ हेल, और अगर इस दोज़ख की तमाम बदरूहों को छोड़ भी दिया जाए, फिर आगे कहते हैं भाई बहन, गॉड्स गॉट अ पर्पस फॉर इट, खुदा का एक मकसद है उन बदरूहों को छोड़ने का भी। अगर खुदा ने इस बीमारी को भेजा है जमीन पर तो खुदा का एक मकसद है। अगर आज ये वायरस आया तो इसका खुदा का इसके पीछे एक मकसद है, एंड इट विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड अंटिल गॉड लेट्स फिनिश पर्पस। और जो खुदा का असल में मकसद है, वो खुदा अपने मकसद को इस बीमारी को भेजकर हासिल करना चाह रहा है कि जो खुदा के चुने हुए लोग हैं वो खुदा के उस मकसद को पूरा कर सकें। आमेन, Amen. See? Amen. So again, don't worry. इसलिए मैं आपको तसल्ली देना चाह रहा हूं कि आप परेशान ना हो, These things that happening is still very mild. क्योंकि जो ये बीमारी पूरी दुनिया के ऊपर आई है ये तो बड़े अभी थोड़े पैमाने के ऊपर है। See? So, but we already have the assurance until God is finished with us, even all the demons in hell cannot touch us. आमीन। अब हमारे पास उसकी एक एश्योरेंस है, हमारे पास एक तस्दीक पहुंच चुकी है कि चाहे उस जहन्नुम की तमाम बदरूहों को छोड़ भी दिया जाए, वो इस जमीन के ऊपर भी आ जाएं, लेकिन हमारे पास एक मकसद है, एक मकसद को, एक मैसेज को हम उठाए हुए हैं, और जबकि वो हमारी जिंदगी के अंदर है तो कोई भी बदरू आपके ऊपर कोई असर नहीं कर सकती है। आमीन। The virus can enter my body, okay? The virus can, but they cannot take my life. आमीन। अब वायरस मेरे जिस्म में दाखिल हो सकता है लेकिन मेरी जिंदगी वो नहीं ले सकता। See? Hallelujah. Amen. Glory. Now, see, now this is very mild, but then now we are seeing the oncoming judgment of God. अब ये तो बड़े थोड़े पैमाने पर खुदा गजब को लेकर आया है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि खुदा की जो आने वाली अदालत है वो किस कदर जो है वो खतरनाक होगी और जो जल्द आने वाली है। See, why? Because people are getting wickeder and wickeder. More wicked and more wicked. लोग इसी वायरस को लेके, इस छोटी सी बीमारी को लेके कमजोर से कमजोर तर हो गए हैं। And God cannot stand, the Holy God can stand it any longer. और अब खुदा वो रूहुल कुद्स अब और ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। See, He needs to do something. God needs to do something. खुदा कुछ करना चाहता है बहुत जल्द। See, so all this thing that's happening is to shake the people, to wake them up. अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? खुदा ने क्यों इस वायरस को भेजा है? खुदा लोगों को हिलाना चाह रहा है कि वो अपने असल मकाम पर वापस आएं। To the whole world, this is a very fearful things. पूरी दुनिया के लिए ये बड़े खौफ की बात है। But to the bride, it is a comfortable things. Amen, amen. लेकिन दुल्हन के लिए ये वायरस का आना तसल्ली और खुशी की बात है। Because we are seeing the fulfillment of the prophecy of God through our messenger. क्योंकि हम देख रहे हैं नबी के पैगाम का पूरा होना हमारे जमाने के अंदर, कि जो नबी ने 1950 में बात बोल दी हमारे वक्त में आकर वो पूरी हो गई, और इसका मतलब कि हम जल्द अपने खुदावंद के पास जाने वाले हैं क्योंकि तेजी से वो नबूवतें पूरी हो रही हैं। See, that's why the prophet said in the oncoming storm, oh, how comfortable it is to see the oncoming judgment and feel that comfort feeling of the Holy Spirit. Hear them talk of atomic bombs and just think what's happened. A peace that passes understanding. Why? The bomb won't no more go out of gun until we'll be in the presence of Jesus with eternal life. Amen. और भाई ब्रैनम एक पैगाम है आने वाला तूफान 1960 के अंदर, उसमें बयान करते हैं कि कितनी ये तसल्ली बख्श बात है कि खुदा की अदालत आ रही है, और वो रूहुल कुद्स है जो हमारे अंदर तसल्ली पैदा करता है कि इस जमीन की अदालत होने वाली है।
और वो आगे बात करते हैं, hear them टॉक ऑफ एटॉमिक बम, कि आप एटमी बम की बातें होता सुनते हैं कि सब ने मुल्कों ने अपने अपने एटमी बम बनाए हैं, एंड जस्ट थिंक्स व्हाट हैपेंड, अ पीस ऑफ पास इज अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे पास चाहे वो बातें इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो तसल्ली मौजूद है, क्योंकि बम जो है वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, गन हमारा कुछ नहीं कर सकती जब तक खुदा की हजूरी, वो अपनी जिंदगी इस जमीन के ऊपर मौजूद है। वी ओल्ड पीपल बैक यंग अगेन, कि हम जो बूढ़े लोग हैं, हम तो इस अदालत के आने की वजह से जल्द बूढ़े लोग जवान होने वाले हैं। अगेन द बेबीज अप टू एन एज, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी उस मौत को नहीं देखेंगे, दुख से निकलकर हम जवान हो जाएंगे, उस खूबसूरती, उस खूबसूरत ज़ियाफत के अंदर शामिल होने वाले हैं। आमीन। Amen. See, people are afraid, like I told you, with this virus. This is very mild. But what is coming, you see, atomic bomb is going to explode. अब लोग इस छोटी सी चीज को लेकर इतना ज्यादा खौफजदा हो गए हैं, लेकिन ये बड़े थोड़े पैमाने पर है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो एटमी बम की जंग आने वाली है, जो बम चलने वाले हैं, ये मिसाइल जगह बजगह, उसके बारे में आप सोचेंगे वो किस कदर खतरनाक होंगे। Just one explosion, it will kill several 100,000. One bomb only. एक बम जो है अगर वो फट जाए, वो कहीं से मिसाइल चला दिया जाए, तो वो बड़े पैमाने पर तबाही कर देगा। But to us, like the prophet said, to us it is a comfort. लेकिन हमारे लिए देखें कि ये तसल्ली की बात है। Amen. Because we know before that bomb explode, we will be in the rapture. Amen. क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले पहला ही बम इस जमीन के ऊपर चले, दुल्हन उठा ली जाएगी यहां से। Amen. And here another one that is coming. और एक और आने वाला है। See, like I told you, this is very mild. This one that is coming, it says here, I'm told in the Bible that there will be time come for these who are not in this wonderful sunlight, that the fowls of the air will eat the flesh of them, that diseases is on its road, that the doctors will never be able to stop. It's the plagues of God. और इसी पैगाम में आने वाले तूफान में भाई ब्रैनम कहते हैं कि आई एम टोल्ड इन द बाइबल, कि मुझे बाइबल में ये बात मिली है, that there will be a time come for those who are not in the wonderful sunlight, कि वो लोग जो उस खूबसूरत सूरज की रोशनी में जो आज हमारे पास है, उस रोशनी में जो लोग नहीं होंगे, that the fowls of the air will eat the flesh of them, कि जब ये तूफान चलेगा तो उन लोगों को वो खा लेगा जो उस बेटा जो सूरज की रोशनी है उसके अंदर नहीं है। बीमारियां उनके ऊपर चढ़ आएंगे और डॉक्टर उन बीमारियों का कोई इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा का गजब होगा। और shall I read, brother, the Egyptian doctor? Have you read that paragraph as well? Amen. Amen. See? So, this virus that we have today, it cannot contaminate you. They said this, it is not airborne, this virus today. और वायरस जो आज का है, ये हमारे बदनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इतना ये खतरनाक नहीं है। But this one that is coming, it says here, it is the fowls of the air. The prophet said that is a disease that is on its road. It says here, Yeah. the fowls of the air, that diseases is on its road. Yeah. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये अब असल में जो बात बताना चाह रहे हैं ब्रदर, कि वायरस ये कुछ नहीं है, लेकिन भाई ब्रैनम ने एक और नबूवत की है आने वाले तूफान के बारे में, कि हवा के अंदर एक ऐसी बीमारी आने वाली है, और वो ऐसी बीमारी होगी कि जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा। वो हवा के अंदर इस कदर जहां जहां वो हवा पहुंचती जाएगी, लोगों को जो है वो बीमारी लगती जाएगी। See, that is an airborne disease. वो हवा से लगने वाली बीमारी है। See, it can pass through air. अब वो हवा के जरिए से बीमारी जो है आगे ट्रेवल करेगी। And that kind of disease is very horrible.
और वो बीमारी जो है वो तो इतनी खतरनाक होगी कि जहां जहां हवा चल रही है वो बीमारी को साथ लेती जा रही है। The problem with that disease, the Bible said it will eat the flesh of the captain, the president, the poor and the rich, the bond and free people. और बाइबल बयान करती है कि वो चाहे कोई सदर है, कोई वजीर आजम है, कोई मुल्क है, कोई गुलाम है, कोई आजाद है, कोई कैद में है, सबके बदनों को वो बीमारी लगेगी और खा जाएगी। See, it will eat the flesh of the people. वो हवास के अंदर जो बीमारी है वो लोगों के बदनों को खाएगी Before they die. इससे पहले कि वो मरें, उनके बदनों का खाया जाना जरूरी है। That's one is very horrible. और इस बीमारी को देखें जिसका भाई ब्रैनम ने जिक्र किया है, ये भी नबूवत है जो होगी, लेकिन ये नबूवत बहुत ही ज्यादा, ये बीमारी खतरनाक है जो हवा के जरिए आएगी। And this, that's why the prophet, the message is always telling us to come to the Lord. इसलिए नबी ने इस पैगाम के अंदर बारहा बयान किया है कि खुदावंद के पास आ जाएं। Don't play church anymore. कि आप चर्च खेलना बंद कर दें। Be serious. आप अपने आप में संजीदा हो जाएं। This coronavirus is just very mild compared to this disease that is coming. ये जो आने वाली बीमारी है, भाई ब्रैनम ने आने वाले तूफान मैसेज है उसमें बयान की है कि हवा के अंदर ये तो कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा बढ़कर होगी। The Bible said it will eat your flesh before you die. और बाइबल बयान करती है इससे पहले कि आप मरें, आपका बदन ये बीमारी खाएगी। And during that time, death, the angel death, he will be in quarantine. Even though you want to die, that is not there. और बेशक उस वक्त आप अपने आप को अलग रख लें, मरना ना भी चाहें, लेकिन वो फिर भी आपको खाएगी। आकर हवा आपको लग गई और उसने आपको खाना शुरू कर देना है। See, during that time people want to die, but they cannot die. अब उस वक्त में देखिएगा जब हवा से ये बीमारी ब्रैनम कह रहे हैं फैलेगी, उस वक्त लोग खुद मौत मांगेंगे कि ऐसी मर जाइए, लेकिन ऐसे मरेंगे नहीं जब तक उनका बदन खाया ना जाए। And that disease will going to eat their flesh. और वो बीमारी लोगों के बदनों को खाएगी। See, it says here, okay, one more. See the oncoming storm, you see? एक और हवाला आने वाले तूफान में से। We see the newspapers in the oncoming storm. When you go home tonight, do me one favor. Don't go to the bed till you read Revelations, the 8th chapter. You see the oncoming plagues and storm, coming plagues that shall hit the earth, and thunders and lightnings are going to shake the heaven. Woe are going to pass over the nation. Men will rot in their flesh. Diseases will strike them. The doctors knows nothing about it. But remember, before that took place, there was a sealing went forth, and the death angels and the plagues was commissioned by God. और ये पैगाम है आने वाला तूफान। इसमें भाई ब्रैनम फिर बयान करते हैं कि आपने अखबारों के अंदर उस आने वाले तूफान में आप पढ़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि आज जब आप घर जाएं तो घर जाते ही आप अपने बेड पर सोने से पहले आप मुकाशवा 8 बार पढ़िएगा, और उसमें आप देखेंगे यू सी द ऑन कमिंग प्लेग्स एंड द स्टॉर्म। आप मुकाशवा 8 बाब में उन खुदा की आफतों को और गज़ब को जो है वो पढ़ सकते हैं। That shall hit the earth and the thunders, lightning going to shake the heaven। और वो तूफान और वो गज़ब जो आएगा वो गर्जों की मानिद होगा, बिजलियां चमकेंगी और वो आसमान को भी वो हिला देगा। Those are going to happen over the nations। और वो अफसोस तमाम दुनिया के ऊपर, दुनिया की कौमों के ऊपर आएगा। Men will rot in their flesh, कि लोगों के बदन उठा लिए जाएंगे। Disease will strike them, doctors know nothing about it। कि बीमारियां वो इस किस्म की होंगी कि डॉक्टर जो कुछ
भी कर लें, उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकेंगे। बट रिमेंबर, बिफोर दैट टुक प्लेस देयर वाज अ सीलिंग वेंट फोर्थ। लेकिन इससे पहले कि ये बीमारी आई जो लोगों के बदनों को खाएगी, इससे पहले खुदा अपने लोगों के ऊपर एक मोहर करेगा। और वो क्या होगा? एंड दैट डेथ एंजल एंड प्लेग्स विच कमीशन बाय गॉड। और वो मौत का फरिश्ता आएगा और वो तो लोगों को हलाक करता जाएगा, लेकिन जो मोहरशुदा लोग होंगे उनके ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होगा। आमेन। Amen. Okay, okay. So don't worry, because the things that is coming will be in the great tribulation. और ये जो मैं बातें आपको बयान कर रहा हूं भाई ब्रैनम के पैगाम में से, आने वाले तूफान कि हवा के जरिए से लोग मरेंगे, लोगों के जिस्म खाए जाएंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत जब शुरू होगी, ये उसमें ये सब कुछ काम ये होने वाले हैं। इससे पहले दुल्हन उठा ली जाएगी। Okay? Don't think we are already in the feet of great tribulation, in the foot of the great tribulation. No, no, no. Very, very far. Still very far. अभी ये बड़ी मुसीबत जो है ये बहुत ही ज्यादा दूर है। आप इस बात को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, ये आगे की बात है बहुत। See? We are not yet in the foot of the great tribulation. Okay? और We are not yet in the foot of the great tribulation. अभी तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ब्रदर भोला प्लीज आप ना तस्वीर ना कोई भी बनाइएगा, वो आगे आ जाती है सारी स्क्रीन के। Oh. यस ब्रदर। See? And you're already crying. और हमने अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तक वो बड़ी मुसीबत आई नहीं है और पूरी दुनिया रो रही है। Oh my. See? Now, so I'm showing this to you so that you will understand a more horrible thing is coming. अब असल में मैं आपको ये तसल्ली का पैगाम दे रहा हूं और दिखाना चाह रहा हूं कि ये तो कुछ भी नहीं है जो आज दुनिया के अंदर चल रहा है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारियां और मुश्किलें परेशानियां जमीन पर आने वाली हैं। So that now you prepare. अब लेकिन हमारे लिए इस सीखने की बात यह है कि हम उन चीजों को देखकर अपने आप को तैयारी की हालत में लेकर आए। See? Because before the judgment struck, there was always a supernatural thing taken place. क्योंकि इससे पहले कि जमीन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज टकराए आकर मुसीबत आए, कुछ मौफूकुल फितर चीजें होना शुरू होंगी। See? First, there will be a message. Second, there will prophet appear. Third, angels appear. Supernatural signs appear. And fifth, the children of God was issued into Goshen. 5 things need to happen first. अब अदालत आने से पहले मौफूकुल फितरत 5 चीजें हैं जो होंगी। पहली चीज वो है कि एक पैगंबर आएगा, और दूसरा है एक नबी जाहिर होगा, और तीसरा फरिश्ते जाहिर होंगे, चौथा मौफूकुल फितरत काम जाहिर होंगे, और पांचवा है कि जो खुदा के बच्चे हैं वो उस जश्न में पहुंचा दिए जाएंगे जो कि फजल है, उस फजल के अंदर होंगे वो लोग। आमीन। Okay, that is in the message. Okay, I did not quote the quotation. Okay. अब मैंने कोटेशन में से भाई ब्रैनम के ये 5 नुकात हैं वो निकाले हैं। अदालत आने से पहले 5 काम The prophet said that. और ये नबी की बात है। First, there will be a message, then the prophet, then angels, supernaturals, then God show us the Goshen. और ये 5 काम जो है भाई ब्रैनम ने बताए हैं कि होंगे। अदालत के आने से पहले पैगंबर आएगा, उसके बाद नबी मंजर के ऊपर आएगा, जाहिर होगा, फरिश्ते आएंगे, मौफूकुल फितरत काम होंगे, और खुदा के बेटे और बेटियां जो हैं वो उस जश्न में पहुंचा दिए जाएंगे ताकि फजल में वो रहें। See? Our Goshen today is the Holy Ghost, Jesus Amen. Christ. हमारा जश्न जो है वो रूहुल कुद्स है, वो यीशु मसीह है। See? So make sure you are under the Holy Ghost. इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि आप रूहुल कुद्स के ताबिया हैं। You are in Christ, hidden in Christ. Make sure. वो देखें जिनका लिखा है कि जितने मसीह यीशु में हैं, आप अपने आप को देखें कि क्या हम मसीह यीशु में हैं। See? So don't be scared. इसलिए आप डरिएगा नहीं।
Don't be afraid. ना आप खौफजदा हों. See, so the prophet said, that's the trouble with man tonight. That's what the trouble with people tonight. You're scared. That's the biggest curse there is on the full gospel people or any other people is because they are afraid. God has made the provision, but you're afraid to take His word for it. और भाई ब्रैनम का पैगाम है खौफ मत कर. उस पैगाम में बयान करते हैं कि आज सबसे बड़ा जो मसला जो है वो यही है कि लोग डर जाते हैं, वो खौफजदा हो जाते हैं, और वो कहते हैं सबसे बड़ी लानत ही ये है कि लोग खुदा के कलाम को लेते हुए, उस खुशखबरी के पूरे पैगाम को लेते हुए खौफ में आ जाते हैं, या कोई भी लोग जो हैं वो डर जाते हैं, और ये एक लानत है, डरना जो है, खौफजदा होना. गॉड हैज मेड द प्रोविजन बट यू आर अफ्रेड टू टेक हिज वर्ड. कि खुदा ने हमारे लिए जो है एक रास्ता मुहैया किया है, हमारे लिए एक सोल्यूशन निकाला है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है. हमारे पास वो कलाम मौजूद है, वक्त का पैगाम है. इट वॉजंट अफ्रेड टुनाइट. इसलिए आज रात हमें डरने की जरूरत नहीं है. Amen. Amen. See, the prophet said that is the biggest curse in the full gospel people and also to all the people being scared. इसलिए नबी कहते हैं कि ये खौफजदा होना, डरना, ये असल में एक लानत है जो कि फुल गॉस्पेल लोगों जिनके पास पूरी खुशखबरी का पैगाम है वो भी खौफजदा हो जाते हैं, और बाकी तमाम लोग जो दुनिया के अंदर हैं वो भी डर जाते हैं. तो ये डरना एक लानत है. See, so don't be scared. इसलिए आप खौफजदा ना हो. The prophet said, there's only two faculties that govern a human, and one is faith, which brings result, and the other is fear, which has no value in it at all. Faith is of God. Fear is of the devil. Fear makes you weary. Fear makes you wander. और ये पैगाम है द वे टू हैव फेलोशिप के भाई ब्रैनम ने पैगाम में बयान किया है कि रफाकत का रास्ता, उसमें बयान करते हैं देयर इज ओनली टू फैकल्टी दैट द गवर्नमेंट्स आर ह्यूमन एंड वन ऑफ देम इज फेथ. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के अंदर जो है इंसान काम कर रहे हैं और वो एक के ताबिया होते हैं और उन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होती, इसी तरह से वो बयान कर रहे हैं कि आज ईमान है हमारे पास विच ब्रिंग रिजल्ट, और वो ईमान ही आगे एक रिजल्ट लेकर आता है कि वो हमारे खौफ को दूर करता है जब ईमान उतर कर आता है. विच वॉज नो वैल्यू ऑफ इट ऑल, कि जिसकी कोई कदर कीमत नहीं अगर आपके पास ईमान है, और वो ईमान खुदा का ईमान है. अगर खुदा का ईमान हमारे पास हो तो जो खौफ है वो अबलीस आपके ऊपर लेकर आता है. Amen. See, so don't be afraid. Again and again, I've been telling it to you. इसलिए मैं बार बार ये बात आपको कह रहा हूं कि आप बिल्कुल खौफजदा ना हो. See, all these things need to happen, okay? क्योंकि ये सब चीजों का होना जरूरी है. See, this is just a mind setting, trying to set our mind on something big to happen. कि ये सिर्फ एक ज़हनी आप अपने आप को जो है सेटिस्फेक्शन है, आपकी अपनी ज़हनी तसल्ली कि किस तरह से हम अपने आप को जो है वो इस हालत में कायम रख सकें. You see, when the Bible said, time will come if you don't have the mark, you cannot buy, you cannot sell. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसा वक्त आएगा कि आप जो हैं उस वक्त में जब वो निशान कर दिया जाएगा आपके हाथों पर, आपके माथे पर, आप कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेंगे. Unless you receive the mark. जब तक कि आप अपने ऊपर जो है उस मोहर को, उस निशान को, उस अबलीस के निशान को ना ले लेंगे. You know, when I read that scripture, I said, how that thing can happen? जब मैंने ये हवाला पढ़ा मैंने कहा ये कैसे होगा? That people will be willing to submit to that system. ये लोग खुद इस बात पर जो हैं वो कहेंगे कि हाँ हम इस निजाम को मानेंगे और हम पर ये मोहर, ये हैवान का निशान कर दिया जाए. See, now in our country, हमारे मुल्क के अंदर, in the Philippines, you cannot go out unless you have the quarantine pass. We call it quarantine pass. ओके.
और हमारे मुल्क फिलीपीन में जो उन्होंने लॉकडाउन किया है, हम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास एक पास है, अलग रहने का पास, वो पास हमारे पास ना हो, वो टिकट ना हो। We cannot buy, we cannot sell unless we have that quarantine pass. हम कोई खरीदो फरोख्त अपने मुल्क में नहीं कर पा रहे अगर हमारे पास वो एक पास नहीं है। See? It's happening in the natural. See, what's happening today has nothing to do with our faith. अब जो फितरी तौर पर हो रहा है, इसका हमारे ईमान के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। But because of this crisis, something is happening. भाई बोले माइक बंद कर दियो प्लीज। See, because of this crisis, now we cannot buy, we cannot sell unless we have this quarantine pass. अब हम जबकि जो पूरी दुनिया में हालात ऐसे चल रहे हैं, हम कोई चीज खरीदो फरोख्त आज भी वो नहीं कर पा रहे जब तक हमारे पास वो अलग रहने का पास ना हो। And then after this crisis, और जब ये हालात ठीक हो जाएंगे और ये मुश्किलात हट जाएंगी, now the government now they know how to craft a law to control their people. If crisis like this happen again, और जो क्राइसिस मुश्किलात आज पूरी दुनिया के ऊपर आई हैं, दुनिया की हुकूमतें इस बात से सीख रही हैं कि अपने लोगों को अब हुकूमतों ने कंट्रोल कैसे करना है। जैसे फिलीपीन में उन्होंने वो पास जारी कर दिए हैं कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता इन पासेस के बगैर। and now this G20, the rich country, they are trying to say, okay, this virus knows boundary, so we need to have a global government. Global government, because this virus, it do not know any boundaries. It will just go to America, will go to UK, will go to Pakistan, Philippines. We need to have a global government to help one another. You got it, brother? I cannot hear you. I think you're mute. Okay. Can you hear me now? Yeah. ओके तो ब्रदर बात कर रहे हैं कि ये जो वायरस आया है फिलीपीन, यूके, अमेरिका और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर, अब ये कोई बाउंड्री नहीं है इस वायरस की, जहां वायरस का दिल करता चले जाता है। अब वो होगा क्या कि यहां से वो गवर्नमेंट सीख रही है कि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वो बनाने की कोशिश करें कि सब मिलकर इस बीमारी के साथ लड़ सकें। तो यहां से वो सीख रहे हैं कि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन सके, कि सब एक दूसरे की मिलकर मदद कर सकें। That's right. Amen. See? So don't worry about this virus. Okay? इसलिए आप इस वायरस से बिल्कुल परेशान ना हो। This is not deadly. ये आपको हलाक नहीं करेगा। This is very contagious. और ये अभी बहुत थोड़ी हद तक है, आप इस पर काबू पा सकते हैं। Just make sure you are under the blood, okay? लेकिन एक बात आप अपने आप पर वाज़िया करें कि आप उस लहू के नीचे हैं। That is our only solution. हमारा हल ये एक ही है कि हम अपने आप को देखें कि हम उस लहू के नीचे हैं या नहीं। You need to be under the blood. हमें उस लहू के नीचे आना होगा। See? And those people that listening, if you are not yet under the blood, ask your pastor, repent and ask your pastor to baptize you. और आप जो लोग जितने सुन रहे हैं, अगर कोई लहू के नीचे नहीं है तो अब अपने पास्टर से बात करें और तौबा करें और अपने पास्टर को कहें कि मुझे बपतिस्मा दें। Time is very short now. वक्त बहुत ही थोड़ा पीछे बचा है। See, up to now there is no antidote. और इसका आप देखें, इसके बाद कोई हल नहीं होगा। They have no solution. इसका कोई हल आपको फिर नहीं मिलेगा। They don't know how long they will put the people in the lockdown situation.
अब हुकूमतों को कोई समझ नहीं आ रही कि कितनी देर वो लोगों को बंद रखें, See, but we already have the solution. लेकिन हमारे पास तो उसका एक हल मौजूद है। See, like the prophet said, it's very simple. The blood of the lamb. जैसे नबी ने कहा है कि ये हमारे लिए जो है इसका हल मौजूद है और बहुत ही सादा है कि हमारे पास बर्रे का लहू मौजूद है। So don't afraid of this coronavirus, okay? इसलिए इस कोरोना वायरस से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। This is just very, very mild. ये बहुत ही एक छोटे पैमाने पर है, The one is coming that is really horrible. क्योंकि जो आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होगा। But because we are stand on the rock, we have the revelation what the message is trying to tell us. इसलिए जबकि हम उस चट्टान पर खड़े हैं, कायम हैं, इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। Even these things happen. बेशक ये चीजें फिर से नमूदार हो भी जाएं, See, we have no problem. हमें किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। We have peace in our heart. हमने अपने दिल जो है खुदावंद को दिए हैं। Brother Shamun, Brother Shabazz, Sajid. Yeah. भाई शबाज, भाई साजिद, And all the brother, I can see some of you. और मैं बाकी तमाम भाइयों को यहाँ पर देख सकता हूँ। Young brother, young sister, don't worry, okay? जो नौजवान बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं सबको देख पा रहा हूँ, आप परेशान ना होइएगा। Amen. See, no problem, okay? इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। You young people, you have no problem. जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Me, I'm senior. मैं बुजुर्ग शख्स हूँ आपके सामने। Yeah. So, I take care of myself. मैं I अपना need भी to ख्याल take care रख of रहा myself. हूँ। आमीन। Yeah. But you children, you young people, don't worry. Okay? This will not kill you unless you have some ailments in your body. और छोटे बच्चे जो हैं, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये किसी को भी हलाक नहीं करेगा। See, you know, once that virus enter your body and you're still young, और जब वायरस आपके बदन में अगर दाखिल हो और आप नौजवान हैं, this body is very complex. God created this body like that. It will produce an immune system. और जो नौजवान लोग हैं, खुदा ने आपके बदन को इस तरह से तख्लीक किया कि आपका जो एक इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर खुदा ने ऐसी कुव्वत मुदाफत रखी है कि वो लड़ना शुरू कर देगा इस वायरस के साथ, कि वायरस इस बदन पर गालिब नहीं आ सकता। So don't worry. इसलिए आप परेशान ना होइएगा। But we old people, लेकिन हम जो बुजुर्ग लोग हैं, our body produce the immune system very slow. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी स्लो है, Because we are already old. क्योंकि हम पहले ही बुजुर्ग हो चुके हैं। But don't worry also, my elders, brother and sister. और जो मेरे बुजुर्ग भाई और बहनें हैं, आप जो हैं बिल्कुल परेशान ना हो। We don't need the immune system. हमें इम्यून सिस्टम की जरूरत नहीं है। We have the Holy Ghost in our heart. आमीन। हम जो बुजुर्ग हैं, हमारे पास खुदा का रूह मौजूद है, जो खुद ही इस वायरस से लड़ लेगा। So once the virus go into our heart, it will just be dissolved. और अगर वायरस उतर भी जाए हमारे बदन में, तो ये गायब हो जाएगा। So God bless you all. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। I hope I've been an encouragement to you. और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मैंने हौसला अफजाई की है इन बातों में। So don't worry, brother and sister, okay? आमीन। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप परेशान ना होइएगा। God gave us that power खुदा ने हमें वो कुव्वत और ताकत दे रखी है to fight that virus. कि इस वायरस के साथ हम लड़ सके। Amen. आमीन। So Lord bless you. खुदावंद God bless you, brother. Yes, brother Jabra.